لیڈروں کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کے سلسلے میں جانچ کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی دوران اخوان المسلمین نے ملک کے موجودہ حالات کو امریکہ اور مغربی ممالک کی سازش کا حصہ بتایا ہے۔ مصر کی عدلیہ کے مطابق معزول صدر محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے اعلیٰ رہنما محمد بدی سمیت دیگر لیڈروں کے خلاف جاسوسی، تشدد بھڑکانے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ عدلیہ نے محمد مرسی اور اخوان کے دیگر لیڈروں کے خلاف موصول ہوئی شکایتوں کی جانچ کا آغاز کر دیا ہے۔ جانچ کے بعد محمد مرسی اور اخوان کے دیگر لیڈروں کو فوجداری مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محمد مرسی اس وقت فوج کی حراست میں ہیں اور انہیں کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا ہے، جبکہ اخوان کے کئی لیڈروں کو تشدد بھڑکانے کے الزامات کے تحت پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسی دوران مصر کے چند سابق ارکان پارلیمنٹ نے محمد مرسی کو اقتدار پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور دیگر ممالک سے عبوری حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر اخوان المسلمین کے سیاسی ونگ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے نائب صدر عصام العرین نے مصر کے موجودہ حالات کو امریکہ اور مغربی ممالک کی سازش کا حصہ بتایا۔ نحن امام مؤامرة كبرى ليس على مصر ولكن على الدول العربية كلها والعالم الغربي في اوروبا وامريكا. لا يهم ان تكون هناك ديمقراطية في بلد من البلاد، هذا نفاق يتشدقون به يهم مصالحه في المقام الاول ويهم حماية الكيان الصهيوني۔ ادھر قاہرہ میں گزشتہ ایک ہفتے سے مرسی حامیوں کے مظاہرے چل رہے ہیں۔ اخوان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ محمد مرسی کی اقتدار پر بحالی تک مظاہرے جاری رہیں گے۔ In response to the US's request to release the president, we disregard the request. It's not about the safety of the President Morsi, it's about protecting the legitimate right of the people and their will through the democratic ballot box. We are still going to be in more protests and more sit-ins until the president is released and reinstated, regardless of his physical condition. ادھر ملک کے عبوری وزیر اعظم حازم ببلاوی نائب صدر محمد البردائی کے ہمراہ کابینہ کی تشکیل میں جٹے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ سیاسی لیڈروں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ خبر پاکستان سے ہے، جہاں کے صوبہ وزیرستان میں رمضان کے مہینے میں بھی امریکہ کے ذریعے ڈرون حملے جاری ہیں۔ شمالی وزیرستان کے میر علی تحصیل کے داور مساکی گاؤں میں کیے گئے ایک ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ذریعے کیے گئے اس حملے میں بیک وقت 2 میزائل داغے گئے، جس کے ذریعے ایک موٹر سائیکل اور ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات 11 بجے کیا گیا یہ حملہ ماہ رمضان میں پہلا ڈرون حملہ ہے۔ سوڈان میں انتہا پسندوں کے حملے میں اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے 7 مشترکہ امن مشن کے اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ سوڈان کے دارفور خطے میں پیش آئے اس واقعے میں 17 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے امن کارکنوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور سوڈان کی حکومت سے حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سوڈان میں شہریوں کے تحفظ کے مقصد سے 2007 سے امن مشن کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ وہاں فی الحال 16,000 سے زیادہ امن کارکن موجود ہیں۔ خبر بھوٹان سے ہے، جہاں انتخابات میں اہم اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 47 رکنی قومی اسمبلی میں PDP کو 32 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ حکمراں جماعت DPT کو محض 15 سیٹیں ہی ملی ہیں۔ 2008 میں DPT کو 45 سیٹیں ملی تھیں۔ ٹیم انڈیا کے اوپنر روہت شرما ویسٹ انڈیز کے دورے سے لوٹ آئے ہیں۔ ممبئی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مداح موجود تھے۔ روہت سے قومی سیریز جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ فائنل میچ میں روہت نے اچھی بلے بازی کی تھی۔ نہیں، بہت ٹف تھا ہمارے لیے وہاں پر جیتنا، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد ہم سیدھا وہاں پر گئے تھے کھیلنے۔ کنڈیشن دونوں الگ تھے، انگلینڈ میں الگ کنڈیشنز تھا اور ویسٹ انڈیز میں الگ کنڈیشنز تھے۔
तो जैसे मैंने बोला कि टीम एफर्ट था, सबने अच्छा किया वहाँ पर, सभी लड़कों ने कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए हम जीते। त्रिकोणीय श्रृंखला का 8वें ओवर में 15 रन बनाने थे, कितना प्रेशर था उस वक्त पूरी टीम पे? देखिए प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमको पता ही है धोनी हमेशा से वो सिचुएशन में जाके काफ़ी मैचेस जीता है इंडिया को, तो हम लोग सब लोग ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव थे कि वो मैच जीतेंगे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब उर्दू स्मार्टफोन और टैब पर भी की जा सकेगी इस्तेमाल। कपिल सिब्बल ने नए उर्दू फॉन्ट और उर्दू की बोर्ड मैनेजर को किया लॉन्च। अरबी की सरगर्मियों से पूरी दुनिया हो सकेगी वाकिफ। अरबी टीचर्स एसोसिएशन की वेबसाइट का ख्वाजा इकराम ने किया इफ्तिताह। गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से दे सकेंगे 9वीं और 10वीं का इम्तिहान। कौमी तालीमी अक़लियती निगरां कमेटी ने तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए पेश किए तजावीज़। रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा जारी। और उर्दू जबान के फरोग में सहाफत और शायरी ने भी किया है अहम रोल। काउंसिल के ताउन से शाया किताब खबरनामा और आसी शख्स और शायर का लेंगे जायजा। नाजरीन, उर्दू जबान का इस्तेमाल अब कंप्यूटर, लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन और टैब पर भी किया जा सकेगा। दिल्ली में उर्दू दुनिया की अहम शख्सियात की मौजूदगी में कौमी काउंसिल और वजारत मवासलात की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे से तैयार हुए उर्दू फॉन्ट, उर्दू कीबोर्ड मैनेजर पर मबनी सॉफ्टवेयर मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के जरिए लॉन्च कर दिया गया। दिल्ली का इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन जुमे की सुबह से ही उर्दू दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ था, क्योंकि उर्दू फॉन्ट और उर्दू कीबोर्ड मैनेजर लॉन्च की तकरीब मुनक़िद होनी थी। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल की जाती दिलचस्पी के नतीजे में उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने का जो सफर तकरीबन 6 माह कबल शुरू हुआ था, आज इसका पहला पड़ाव मुकम्मल हुआ। उर्दू वालों की मौजूदगी में वजीर मवासलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उर्दू जबान को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क आगे बढ़ेगा। हम इसके सपने कई बरसों से देख रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि कब हम टेक्नोलॉजी द्वारा उर्दू ज़ुबान आम आदमी तक पहुंचाएं। तो वो कदम आज हमने आगे बढ़ाया है और मैं इसके लिए सीडैक को ख़ास तौर पे और
नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज को और TDIL को और हमारे जो अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार को, कुलकर्णी साहब को, स्वर्ण लता जी को, प्रोफेसर इकरामुद्दीन साहब को और जो प्रेरणा देने वाले अख्तर उलवासी साहब, अपने बरेलवी साहब, ये लोग हमें पुश करते थे कि 15 करोड़ लोगों के लिए तो एक तो अलग बात है, लेकिन उर्दू ज़ुबान कोई केवल 15 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान की सभ्यता की रूह है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि डिजिटल मीडिया में विंडो यूनिकोड के ज़रिए खुल गया। आप इतने बड़े तादाद में हैं, आपके सारे लोगों के हाथों में मोबाइल है, लेकिन आप अपनी ज़बान में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, मैसेज नहीं डाल सकते थे, फ़ोन बुक सेव नहीं कर सकते थे, ठीक है। और आज तो स्मार्टफोन में सारी सहूलतें जो होती हैं इंटरनेट में जाने की, तो ये सारे दरवाजे आज खुल गए। उर्दू के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकेगा, जिससे लैपटॉप, एंड्रॉइड फ़ोन, विंडो फ़ोन के अलावा कंप्यूटर पर उर्दू ज़बान को सीधे तौर पर अंग्रेजी ज़बान की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी गालिब, शिबली गोल्ड समेत नस्ब के 12 फॉन्ट और नस्तालिक का फॉन्ट सॉफ्टवेयर में डाला गया है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले 5000 अल्फाज का डेटा भी डाला गया है, लेकिन इसको फोन और कंप्यूटर में बढ़ाने की सहूलत भी है। खास बात यह कि सॉफ्टवेयर में उर्दू के अलावा अंग्रेजी का भी इस्तेमाल मौजूद है। फोनेटिक कीबोर्ड के अलावा दूसरे कीबोर्ड इस्तेमाल करने की सहूलत भी है। सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले माहिरीन का कहना है कि अभी ये पहला कदम है और लंबा सफर तय होना है। I'm really happy that a very important event is happening in furtherance of use of Urdu language on the internet. As has been mentioned, a lot more needs to be done. सॉफ्टवेयर को मारूफ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी सीडेक ने तैयार किया है, तो हिंदुस्तान में उर्दू के सबसे बड़े इदारे कौमी काउंसिल तमाम सॉफ्टवेयर के मेयार की जांच करने की जिम्मेदारी निभाने के अलावा डाटा बैंक मुहैया करा रहा है। नाजरीन, उर्दू दान तबके ने ज़बान को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने का खैर मकदम किया है। उर्दू वालों ने वजीर मवासलात कपिल सिब्बल और ख्वाजा इकरामुद्दीन की कोशिशों की सताइश की। हमारे लिए बहुत अहम दिन है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ताज़ियाना है जो कि ये कहते थे कि उर्दू ख़त्म हो गई, हिंदुस्तान में उर्दू का कोई मुस्तक़बिल नहीं है, ज़मीन पे उर्दू नहीं रही है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उर्दू जो है ज़मीन से आसमान तक अब हर जगह मौजूद है। इसके लिए कपिल सिब्बल साहब और हुकूमत हिंद के हम शुक्रगुज़ार हैं और हमें उम्मीद है कि ये आज का जो सफ़र का पहला कदम है, ये आगे चलकर हम और बेहतर माहौल पैदा करेंगे। उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से जो IT की हम बात करते हैं या मार्केट वैल्यू कम है, तो मैं समझता हूँ उर्दू ज़बान में अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो ये अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी या जर्मन या चीनी किसी ज़बान से कम नहीं होगी। तो ये एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और मैं खुले दिल से ख्वाजा इकराम साहब की, कपिल सिब्बल साहब की, NCPUL और जो IT मिनिस्ट्री है हमारी, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। नाजरीन, गैर मंजूर शुदा मदरसों के तलबा भी 10वीं का इम्तिहान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूल से कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम से जुड़ने के बाद तलबा आगे की पढ़ाई किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन की मीटिंग में NIOS और CBSE के ओहदेदारों ने बताया कि गैर मंजूर शुदा मदरसों के तलबा जदीद तालीम हासिल करने के साथ ही रोजगार पर मबनी कोर्स भी कर सकेंगे। हाल ही में वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के कायम करदा कौमी तालीमी अक़लियती निगरां कायमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मरकजी वजीर M पल्लम राजू को पेश की थी। इस रिपोर्ट का अब उर्दू तर्जुमा भी मंजर आम पर आ गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुई मीटिंग में रिपोर्ट के उर्दू तर्जुमे की रस्म इजरा कमेटी के चेयरमैन सिराजुद्दीन और कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन के हाथों अमल में आई। इस मौके पर वजारत के अफसरान के अलावा पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर उल वासी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग यानी NIOS और CBSE के अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में गैर मंजूर शुदा मदारिस को NIOS से जोड़े जाने पर गौर व खौज किया गया और ये फैसला लिया गया कि गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा भी अब 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात दे सकेंगे।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसमें अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से एक सब्जेक्ट वो वोकेशनल ले सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि वो अभी उन बच्चों के पास जो गैर मंजूर शुदा मदारिस से आते हैं, अभी उनके पास ना तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कोई सर्टिफाइड है, ना उनका पता सर्टिफाइड है, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट है। तो कोशिश ये है कि ओपन स्कूलिंग सिस्टम से वो ये हासिल कर लें, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम जो हमारी तालीम है उसका एक हिस्सा बन सकें। इस नेशनल का मॉनिटरिंग कमेटी ने बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सिफारिश दी थी कि किसी न किसी तौर पर हर्डल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं कि जो अक़लियती तालीमी इदारे हैं वो CBSE पैटर्न का CBSE से एफिलिएशन के साथ स्कूल शुरू करना चाहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत लंबा प्रोसेस था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। अब उसको हुकूमत ने मान लिया कि बगैर NOC के वो CBSE के अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं तो CBSE उनको मान्यता दे देगी। CBSE जो है वो CBSE के पैटर्न पर वो स्कूल खोल सकते हैं। कमेटी की पहली सिफारिश ये है कि हुकूमत मौजूदा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी जिला प्रोजेक्ट के तहत दर्जा 1 से दर्जा 8 तक और सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत दर्जा 9 से दर्जा 12 तक मजहबी अक़लियतों के आदाद-ओ-शुमार जल्द अज जल्द जमा कराए, क्योंकि मौजूदा आदाद-ओ-शुमार नाक़िस हैं। कमेटी ने वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के अलावा सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत, ज़राअती रिसर्च, टेक्सटाइल बिलखुसूस फैशन टेक्नोलॉजी की वजारतों से मिलकर काम करने की सिफारिश की है, ताकि अक़लियती तलबा को जदीद कोर्सेज से जोड़ा जा सके। कमेटी ने इंटरमीडिएट के बाद की मालूमात जमा करने के लिए एक सिस्टम तैयार करने की भी सिफारिश की है, ताकि दाखिले का मुकम्मल डाटा बैंक तैयार हो सके। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्कूलों में जाने वालों की तादाद की कमी पर कमेटी ने सख्त तशवीश जाहिर की है। बाज़ रियासतों में प्राइमरी दर्जात में जाने वाले बच्चों की तादाद में होने वाली कमी की वजूहात की तफसीलात न होने का भी शिकवा किया गया। वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल से ज़िलाई सतह के आदाद-ओ-शुमार का तज्ज़िया करने और रियासती हुकूमतों से मिलकर इस मसले को हल करने की सिफारिश की है। कमेटी ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत मदारिस व मकातिब को माली इमदाद जारी करने की सिफारिश की है, क्योंकि RTE एक्ट 2009 के तहत मदारिस व मकातिब को खारिज कर दिया गया था और उनकी माली इमदाद भी बंद कर दी गई थी। कमेटी ने इसे जारी रखने की सिफारिश की है। कमेटी ने 10% तक की अक़लियती आबादी वाले अजला में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कायम करने की सिफारिश की है। उर्दू आबादी वाले इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल न होने पर भी कमेटी ने सख्त तशवीश जाहिर की है और ये सिफारिश की है कि स्कूलों के कायम के साथ साथ बासलाहियत उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी और निसाबी किताबों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। उर्दू मीडियम असातिज़ा की तरबियत के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल कायम किए जाएं और तरबियत याफ्ता उर्दू असातिज़ा का एक कौमी रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि किसी रियासत में तरबियत याफ्ता टीचर न होने की सूरत में दूसरी रियासत से इस कमी को पूरा किया जा सके। वजारत ने निजी और सरकारी शराकत प्रोग्राम के तहत 2500 मॉडल स्कूल कायम करने की एक स्कीम तैयार की है, लिहाजा 250 स्कूल मजहबी अक़लियतों के लिए मुख्तस किए जाएं। इसी तरह 33% लड़कियों के रिजर्वेशन में अक़लियती फ़िरक़े की लड़कियों को भी इस स्कीम का फायदा पहुँचाया जाए। 11वें पंसाला मंसूबे के तहत वजारत ने 538 लड़कियों के लिए हॉस्टल कायम किए हैं, जिनमें कुछ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ मिलकर कायम किए गए हैं। इसलिए कमेटी ने ये सिफारिश की है कि 90 अक़लियती अजला में 100 लड़कियों की गुंजाइश वाले कम अज कम 2 हॉस्टल कायम किए जाएं। रिपोर्ट में आला तालीम के शोबे में अक़लियती तलबा के कम तनासुब पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। कमेटी ने आला तालीम में अक़लियतों की शमूलियत बढ़ाए जाने और 90 अक़लियती अजला में मॉडल डिग्री कॉलेज कायम करने और उन्हें 100% ग्रांट फराहम करने की सिफारिश की है। इस तरह कमेटी ने UGC के जरिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों में अक़लियती तलबा की हिस्सेदारी को यकीनी बनाए जाने और उन्हें वज़ाइफ दिए जाने की भी सिफारिश की है। कमेटी ने गैर इमदाद याफ्ता मदारिस में दोपहर का खाना बच्चों को फराहम करने की सिफारिश की है। 11वें मंसूबे में SPQM स्कीम के तहत मदरसों को 350 करोड़ रुपए का फंड हुकूमत ने फराहम कराया था, लेकिन बहुत सी रियासतों में ये फंड रियासती हुकूमतों की जानिब से तकसीम नहीं हुआ था। कमेटी ने मरकजी हुकूमत से सिफारिश की है कि वो रियासती हुकूमतों को फंड जारी करने की हिदायत दे। SPQM स्कीम के तहत ग्रेजुएट असातिज़ा की तनख्वाह 6000 से बढ़ाकर 8000 और पोस्ट ग्रेजुएट असातिज़ा की तनख्वाह 12000 से बढ़ाकर 15000 करने की कमेटी ने सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत की तमाम तालीमी स्कीमों के बारे में अक़लियती इलाकों में बेदारी पैदा करने की भी सिफारिश की है और इस बेदारी के लिए उर्दू अखबारात, उर्दू TV चैनल्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया की मदद लेने पर भी जोर दिया है। हिंदुस्तान व बैरून मुल्क अरबी जबान की सरगर्मियों से अब पूरी दुनिया के अरबीदां फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि अरबी टीचर एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म पेश करते हुए एक वेबसाइट शुरू की है। दिल्ली में एक पुरवक़ार तकरीब में काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा इकराम ने इस वेबसाइट का इफ्तिताह किया।
फरोग़ उर्दू भवन में अरबी असातिज़ा की एसोसिएशन की जानिब से हिंदुस्तानी अरबी स्कॉलर्स के लिए वेबसाइट की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी समेत अरबी ज़बान व अदब के असातिज़ा मौजूद थे। ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने वेबसाइट का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान में अब तक है ना मुनज़्ज़म तरीके से कोई अरबिक के हवाले से काम नहीं किया जा रहा था और ये पहली दफ़ा अरबिक के असातिज़ा ने स्कॉलर्स ने मिल करके एक इत्तफ़ाक़ राय और उन्होंने रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ये मेरा ख्याल है कि मजबूती और इस्तेहकाम के साथ काम करने के समत में एक बड़ी पेशरफ्त है। चूँकि काउंसिल अरबिक के फ़रोग़ के लिए भी काम कर रही है और इसीलिए काउंसिल को इन्होंने ये एजाज़ बख्शा कि काउंसिल में ये खुद आए और हमारे हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ है। मैं इनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये कम से कम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा कि रिसर्च स्कॉलर्स भी, असातिज़ा भी और दूसरे डिपार्टमेंट एक साथ मिलेंगे और अरबी के फ़रोग़ के हवाले से काम करेंगे। हिंद अरब ताल्लुकात बड़े तारीखी रहे हैं। हिंदुस्तान में अरबी ज़बान व अदब पर बहुत काम हुआ है। ये काम न सिर्फ तहक़ीक़ी नौइयत का है बल्कि तख्लीकी काम में भी हिंदुस्तानी असातिज़ा व माहिरीन ने अपना सिक्का दुनिया में मनवाया है। आज भी 8 मिलियन से ज़ायद हिंदुस्तानी अरब मुल्कों में काम कर रहे हैं। 25 मुल्कों में अरबी सरकारी ज़ुबान है, जिससे अरबी ज़बान में रोजगार और इंडस्ट्री के क़याम के बड़े इम्कानात हैं। अरबी माहिरीन का कहना है कि इनकी ये वेबसाइट अरबी वालों को आवाज़ बुलंद करने के लिए प्लेटफॉर्म देगी और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में तर्जुमान होगी। माहिरीन का मानना था कि हिंदुस्तान में जरा सी तवज्जो से अरबी ज़बान रोजगार की नवीद बन सकती है। आजकल दुनिया बहुत करीब हो गई है ताकि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में अरबी में काम होता है वो पूरी दुनिया में देखा जा सके। इसी तरह जो अरबी का काम हो रहा है उसको हम यहाँ के लोगों के लिए उस वेबसाइट के ज़रिए पेश कर सकें। और उस वेबसाइट के फ़ायदे सबसे बड़े ये हैं कि जो किताबें दस्तयाब नहीं है हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ और हिंदुस्तान की किताबें, वो हम इस पर PDF फाइल बना के डालेंगे। अरबी हिंदुस्तान में मदरसों में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, लेकिन अरबी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि इसके फ़रोग़ के लिए आदमी किस प्लेटफॉर्म से बात करे। कोई भी टीचर अभी तक जो बात करता था वो अपने इंडिविजुअली बात करता था, लेकिन अब उसके पास एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से वो गवर्नमेंट को मुखातब कर सकता है, मिनिस्ट्रीज़ को कर सकता है, फॉरेन एम्बेसीज़ को कर सकता है। अब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है अरबी का जो है फ़रोग़ अच्छा हो जाएगा हिंदुस्तान में। ये एसोसिएशन एक पहल है हम लोगों की जानिब से, जिसके ज़रिए हम उन तमाम हिंदुस्तान के अरबी दां लोगों से जुड़ना चाहते हैं और उनको अरबी की जो भी सहूलतें हैं मौजूद हैं उनसे हम उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने शाह वलीउल्लाह से लेकर अली मियां नदवी, सैयद सुलेमान नदवी जैसे अरबी स्कॉलर पैदा किए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान का वक़ार मजीद बुलंद करेगा। नाज़रीन, उर्दू दुनिया में यहाँ वक्त है ब्रेक का। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहां उन्होंने मायूस किया, कहां उम्मीदों के चिराग जलाए, कहां पीछे गए, कहां आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से की जा रही कोशिशों से तलबा के मुस्तक़बिल रोशन हो रहे हैं। इदारों के जिम्मेदारान मानते हैं कि अगर ज़बान व अदब की तरक्की और बहबूद से वाबस्ता दीगर इदारे भी काउंसिल की तर्ज पर काम करें तो उर्दू के साथ साथ अहले उर्दू के मसाइल भी हल हो सकते हैं। लखनऊ में वाक़े दारुल उलूम वारसिया में भी काउंसिल के ताउन से एक ऐसा इदारा चलाया जा रहा है जहां गैर मुस्लिम तलबा भी उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें कोई शुबहा नहीं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत के तहत काम करने वाली कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने ज़बानो अदब और अहले उर्दू के हवाले से
जो कोशिशें की हैं, इनकी कोई दूसरी नजीर नहीं। लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े इस कंप्यूटर सेंटर का क़याम 2 साल कब्ल हुआ था। जिस वक्त इस इदारे को शुरू किया गया था, इसमें तलबा और तालिबात की तादाद 24 थी, लेकिन इस साल ये तादाद 55 तक पहुंच गई है। कौमी काउंसिल ने ये जो उर्दू डिप्लोमा का या कंप्यूटर सेंटर का जो प्लान किया है वो बहुत अच्छा प्लान है। इससे तलबा और तालिबात को बहुत फ़ायदा हो रहा है और यहाँ से लोग निकल के अच्छी अच्छी जगह जॉब भी पा रहे हैं। कौमी काउंसिल की जानिब से इन इदारों को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मराद फराहम की जाती हैं। माली ताउन के साथ तकनीकी तालीम और उर्दू सिखाने के लिए अच्छे असातिज़ा के इंतखाब और इनकी माहाना तनख्वाह के लिए भी काउंसिल रकम मुहैया कराती है। जी, यहाँ पर हमारे कोर्स का नाम है काबा MDTP, जो मॉड्यूल वाइज 1 ईयर का डिप्लोमा है, जिसमें उर्दू का भी डिप्लोमा होता है और काबा MDTP का भी डिप्लोमा होता है, और साथ में CCC जोड़ दिया गया है, जो अगर 1 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनको फ्री ऑफ कास्ट होता है। उर्दू में ये जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, इससे जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि उनको उर्दू बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाती है, एक अदर लैंग्वेज उनको सीखने को मिल जाती है। और प्लस इस कोर्स में ये अच्छाई है कि इंग्लिश के साथ अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम उर्दू में पेपर दे सकते हैं, तो वो जो जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है वो उर्दू अपनी स्ट्रॉन्ग करके उर्दू में पेपर दे लेते हैं। हालांकि लखनऊ में काउंसिल के ताउन से कई और सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये गोमती नगर सरहद पर वाक़े है, जिसका फायदा ये है कि मज़ाफ़ाती इलाके के तलबा और तालिबात भी यहाँ बआसानी पहुँच रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तालिब इल्मों की तादाद में तो इजाफा हो ही रहा है, साथ ही बच्चों में ये एहसास भी परवान चढ़ रहा है कि यहाँ से कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद इन्हें मुस्तकबिल में बेहतर मौके फराहम हो सकेंगे। मुझे एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत थी जहाँ पर उर्दू से कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाए, तो जब मुझको यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर एक ऐसा कोर्स चल रहा है जहाँ पर आपको उर्दू से कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, तो मुझको एक अपने मुस्तकबिल में रोशनी दिखाई दी कि इस कोर्स को करके मैं आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर्स बड़े आराम से कर सकता हूँ। कॉलेज में भी हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हुआ है, हमें कंप्यूटर से आगे इंजीनियरिंग करनी है और अपना फ्यूचर ही कंप्यूटर में बनाना है, इसीलिए हमने कोर्स ही ऐसा लिया कि हम हर चीज़ कंप्यूटर की नॉलेज रख सकें और हर चीज़ जान सकें कंप्यूटर में। और कहीं कंप्यूटर अगर हम सीखते तो उर्दू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब और भी कहीं एग्ज़ाम होता है तो हमें इंग्लिश में देना पड़ता है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होते हैं वो हम उर्दू में भी एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं, करके एग्ज़ाम में बीट कर सकते हैं। कौमी काउंसिल की कोशिशों की सताइश हर सतह पर की जा रही है। सेंटरों के जिम्मेदारान और तलबा और तालिबात भी मुतमईन नजर आते हैं। आज़ादी के बाद उर्दू ज़बान की तरवीज में सहाफ़त और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल उर्दू शायरी से कम नहीं रहा है। शेरो शायरी से उर्दू आवाम की ज़बान पर चढ़ी तो टीवी और फिल्मों ने उर्दू की शीरीनी का सहारा लेकर आवाम में मकबूलियत हासिल की, लेकिन सहाफ़त ने उर्दू के हर गोशे को मजबूत किया है। कौमी काउंसिल ने अदब और शायरी के साथ साथ फ़न सहाफ़त पर भी ग्रां क़द्र किताबें क़ारीन को पेश की हैं। एम आज़म की किताब ख़बरनामा और मोहम्मद आसिफ की किताब शख्स और शायर इसी सिलसिले की अहम तरीन कड़ियों में से एक है। उर्दू ज़ुबान आमतौर पर उर्दू सहाफ़त में प्रिंट मीडिया के इर्द गिर्द ही महदूद रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू ज़ुबान के कसीर दर्जा इस्तेमाल के बावजूद बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद नहीं है। ETV उर्दू के मायनाज़ एंकर एम आज़म ने अपनी इस किताब में ख़बरनामे को मरकज़ी नुक़्ते नज़र बनाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू ज़ुबान की वुसअत, अफादियत और TV पर उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल के बारे में तफसीली अंदाज में रोशनी डाली है। किताब न सिर्फ रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर न्यूज़ फॉर्मेट, एंकर स्क्रिप्ट तक से बहस करती है और हर उस पहलू को बयान करती है जो टीवी के सहाफ़ी की मेहनत से शुरू होकर किसी खबर के टेलीकास्ट तक दराज होता है। यही वजह है कि मेकअप, PCR, स्टूडियो, सुपर, एंकर लिंक, हाफ स्क्रीन समेत हर अमल को किताब का हिस्सा बनाया गया है।
کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ میڈیا ڈکشنری الفاظ اور جملوں میں